Hello everyone, welcome to this channel. This is Itiwala Gurukul and I am your teacher Priyanka Das. So today in this video we are going to learn William Graham Sumner. आज हम पढ़ेंगे विलियम ग्राहम सुमनर की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जल्दी से रिवाइज करेंगे. उनका टाइमलाइन याद कर लीजिए. दैट इज 1840 to 1910. He was a foundational figure in American sociology and he was the first ever professor at Yale University in sociology and president of American Sociological Society. This is very important. Just remember that he was the president of American Sociological Society. So there were so many concepts. So let me first go into the books, okay, so that you can get an idea about the concepts that he has given. Okay, the first thing is 1883. What a social class says owe to each other. क्रिटिक ऑफ स्टेट वेलफेयर एंड सोशल इंजीनियरिंग. उन्होंने फर्स्ट जो बुक दिया था, आप कह सकते हो दिस कैन नॉट बी द वेरी फर्स्ट वन, बट दिस 4 बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वी आर गोइंग टू ओनली रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बिकॉज टाइम इज वेरी लेस, सो we cannot actually remember so many things, right? So remember that this is the critique of state welfare and social engineering. So in this book what he says that the schemes of social welfare is actually not good for the society. It helps the poor, it helps the one who are not fit for the society. So according to him, the state welfare scheme should not be there. Government should only support the one who are strong, who actually can contribute to the economy of the country or the society. So he actually criticized the state welfare and the social engineering. So you have to remember the book name, what social classes owe to each other. Okay, the next 1998, the conquest of the United States by Spain. The conquest of the United States by Spain, powerful anti-imperialist essay. ओके, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने एंटी इम्पीरियलिस्ट की कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था. ठीक है, उसके बाद 1906 में हम पाते हैं Fouquet's study of sociological importance. Here he talks about social norms, ethnocentrism, group dynamics, okay, mores. So all these concepts are very important, that is given by William Graham Sumner. And here he also talks about social institutions, how the social institutions came, why it is important to remember, what are the key concepts of institutions, how institutions were formed. Okay, all these you have to study and memorize. And at the end 1927, the science of society. You have to remember कि ये उनके मतलब डेथ के बाद पब्लिश किया गया था. The death of the science of society. Okay, completed by his student Albert Galway Keller. Remember that. Okay, post Thomas, the science of society. So we have 3 books. What social classes owe to each other in 1983. In 1998, the conquest of the United States by Spain. In 1906, Fouquet's A Study of Sociological Importance. In 1927, The Science of Society, which is post Thomas. Okay, now let's get into the theories. There are some key words that here I have mentioned and you have to remember that. He introduced this concept Fouquet's in his seminal work 1906 book Fouquet's. book का नाम ही Fouquet's था. Okay, Fouquet's क्या होता है? ये कस्टमरी होता है, नॉर्मल एंड हैबिचुअल बिहेवियर पैटर्न्स कॉमन टू ए ग्रुप और सोसाइटी. दे आर अनकॉन्शियस. यू हैव टू रिमेंबर फोकस ऐसा नहीं है कि आप कॉन्शियसली करते हो, ये बहुत अनकॉन्शियस होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, अनप्लान्ड बिहेवियर्स होता है दैट अराइज टू मीट डेली ह्यूमन नीड्स, ईटिंग हैबिट्स, मोड ऑफ ड्रेसिंग, ग्रीटिंग्स. Okay, violating Fouquet's results in mild social disapproval, raising eyebrows and
eccentric labels but no severe punishment. Okay, so you have to remember that focuses are something that you do unconsciously. Whenever you are passing by a mandir, somehow what you do, you bow your head, right? So this is something that you do spontaneously which is unplanned, right? जब आपके घर में कोई बाहर का आता है, बड़े आते हैं, तो आप क्या करते हो, उनके पाँव छूते हो, है कि नहीं? लेकिन अगर आपने उनका पाँव नहीं छुआ तो आपको डांट पड़ सकती है, लेकिन कोई सीवियर पनिशमेंट तो होगा नहीं. लेकिन देखिए मोरेस क्या कहते हैं, व्हेन फोक्वेस डेवलप ए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर, मोरालिटी, राइटनेस, दे sublimate into mores. Mores are compulsory and prescriptive. They dictate what is absolutely right and wrong for the preservation of the society. Taboo against incest and monogamy. Violating mores results in severe social condemnation and punishment. जैसे कि आप देखिए, आप मोनोगैमी को अगर वायोलेट करोगे, हमारे यहाँ के जो सोसाइटी से, वहाँ पर हमें क्या सिखाया जाता है कि दैट वी शुड मेंटेन मोनोगैमी, इजंट इट? सो व्हेनेवर वी आर नॉट मेंटेनिंग दैट, इफ अ पर्सन मैरीज इन हिंदू मैरिज लॉ, स्पेशली इफ अ पर्सन मैरीज 2 wives or 2 person, then it is not actually good for the society. It has not been said by the society that you can do that. So if you are violating this, then it is going to create some problems. Okay, then here you can see institution. What Sumner provided a famous evolutionary formula for the growth of social institution. उनके हिसाब से इंस्टीट्यूशन का ग्रोथ कैसा होना चाहिए. जैसे कि देखिए, आपका ज़रूरत है, आपको भूख लगी है ना? तो आपने क्या किया, आपने खाने का हैबिट तैयार किया, ठीक है? उसके बाद खाने के साथ साथ आपने कुछ एथिकल कोड्स भी अपने लिए क्रिएट किया, है ना? कि हम जो है हम वेज खाएंगे, हम वेजिटेरियन होंगे, है ना? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमें क्या खाना चाहिए, हमें वेज खाना चाहिए ज़्यादातर, ऐसा नहीं है कि वेज ही खाना है. उसके बाद वो क्या होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, स्ट्रक्चर सोशल फॉर्म्स होता है, ताकि हम हमारे जो ज़रूरत है उसे फुलफिल कर पाए, टू फुलफिल आवर नीड. ही डिफाइंड एन इंस्टीट्यूशन एज कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट, एन आइडिया, नोशन एंड डॉक्ट्रिन एंड ए स्ट्रक्चर. सो सोशल इंस्टीट्यूशन की अगर डेफिनेशन आए और उसमें कॉन्सेप्ट दिखे आपको, जो क्या है, आइडिया है, नोशन है, डॉक्ट्रिन है, और एक स्ट्रक्चर दिखे आपको, द फ्रेमवर्क और एपरेटस designed to execute that concept. Clear? So concept and structure ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या आता है, इंस्टीट्यूशन आता है. लेकिन आपको ये जो क्रोनोलॉजी है ये याद रखना होगा कि हमारे आगे पहले हमें नीड आया, उसके बाद फोकस, उसके बाद मोरेस, उसके बाद इंस्टीट्यूशन. ओके, सो इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप क्या होता है. अब चलिए आते हैं इन ग्रुप और आउट ग्रुप के कॉन्सेप्ट में. In Foucault, Sumner distinguished between 2 fundamental types of social group based on psychological belonging. आपके दिमाग से आप किसी ग्रुप के हिस्सा हो सकते हो, है ना? जैसे कि देखिए, आपके पास अगर 10 फ्रेंड है तो उसमें से शायद 1 या 2 होंगे जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो. 5 फ्रेंड की ग्रुप हुआ, लेकिन उसमें आप हर किसी के ऊपर तो ट्रस्ट कर नहीं पाओगे. और आउट ग्रुप क्या होता है, वो दे ग्रुप होता है, अ ग्रुप टूवर्ड व्हिच एन इंडिविजुअल फील्स अ सेंस ऑफ ऑपोजिशन, कंपटीशन, इंडिफरेंस एंड हॉस्टिलिटी. आउट ग्रुप क्या होता है कि जहां पर आप खुद से ये फील ही नहीं कर पाते हो कि आप वहां पर बिलोंग करते हो. हमेशा आपको ये लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो जाएगा जो मेरे लिए नहीं होगा. हर वक्त एक कंपटीशन होता है, हर वक्त ऐसा लगता है कि कुछ बुरा ना हो जाए, या फिर ऐसा लगता है कि हम जो भी करेंगे वो हमारे ऑपोजिट ही करेंगे, तो उसे हम आउट ग्रुप कहेंगे, दे ग्रुप. इन ग्रुप क्या होता है, जहां पर हमारे पास वी फीलिंग होता है, वी ग्रुप, अ सोशल कैटेगरी टू व्हिच अ पर्सन फील्स ए सेंस ऑफ लॉयल्टी, सॉलिडेरिटी, रेस्पेक्ट एंड इंटीमेसी. क्लियर? ये जो डेफिनेशंस है ना, ये आपको याद रखना होगा, तो ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं सब से जो है क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है,
थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की अगर आप बात करें तो दो हमें दिखाई देता है, एक सोशल डार्विनिज्म और एक लेजी फेयर एंड एंटी एम्पीरियलिज्म। अब देखिए ये क्या होता है, सोशल डार्विनिज्म के हिसाब से पहले तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था और चार्ल्स डार्विन ने दिया था, है ना, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। Sumner was a staunch proponent of social Darwinism in America. He argued that society evolves naturally through a struggle for existence, where only the survival of the fittest ensures social progress, expense of the industrious, thereby dragging society downward। देखिए सिंपल से अगर हम ये बात करें तो आपको ये इमेज दिख रहा है ना, इंडस्ट्रियस अनफिट। अगर आप सोसाइटी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप अगर इंडस्ट्री में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, आप इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप कुछ स्कीम्स ले लो जिससे जो पुअर है वो आगे बढ़े, तो उन्होंने इसे कहा था कि ऐसा नहीं होता है। उन्होंने सोशल डार्विनिज्म की कॉन्सेप्ट दिया था, जहां क्या कहा जाता है कि जो फिट होते हैं, जो लड़ाई कर सकते हैं, जो स्ट्रगल कर सकता है एग्जिस्टेंस के लिए, वही सोसाइटी को इवॉल्व कर सकता है। और बाकी जितने भी सारे लोग हैं जो कुछ भी मतलब प्रॉफिट नहीं दे पाएगा, है ना, कुछ भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो सोसाइटी के लिए नहीं है, वो सोसाइटी को क्या करेगा, ड्रैग करेगा नीचे। ठीक है। लेजी फेयर एंड एंटी इंपीरियलिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि लिबरल कैपिटलिज्म, ओके, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड चैंपियन। इसका मतलब है कि he was a fierce critic of American imperialism, arguing that war and external expansion expand government central control। देखिए अगर आप वॉर में जाओगे, आप अगर एक्सपैंड करना चाहोगे गवर्नमेंट सेंट्रल कंट्रोल, जो गवर्नमेंट क्या करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, है ना, डोमेस्टिक सिविक रियलिटीज लिबर्टीज पर जो है वो अपना खुद का जो कंट्रोल है वो करना चाहेगा। ठीक है, तो उससे उन्होंने क्या कहा था, एंटी इंपीरियलिज्म कहा था। उसे उन्होंने क्या कहा था, एंटी इंपीरियलिज्म, क्योंकि ये नहीं होता है। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए कुछ यहाँ पर टर्म्स जो है उसे आपको याद रखना है। द फॉरगॉटन मैन, कॉइन्ड बाय सुमनर। अब देखिए इस आदमी ने टैक्स भी पे किया, उन्होंने अपना जो है फैमिली भी संभाला, ओके, और ये सारे पैसा कहाँ पर दिया, गवर्नमेंट को दिया। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हमें सोशल रिफॉर्म करना है। ठीक है, जो अनफिट है, जो शिफ्टलेस है, जिससे आप कुछ भी नहीं प्रॉफिट कमा सकते, आप इन लोगों से पैसे लेकर इन लोगों को देने लगे, है ना। तो उनके अनुसार द फॉरगॉटन मैन एज अ क्वाइट हार्डवर्किंग लॉ अबीडिंग who forced by paternalistic state legislation to pay for their schemes by social reformers to help the unfit। और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कहाँ दिया था, 1883 के एसे में उन्होंने दिया था। ठीक है, 1883 के एसे में उन्होंने दिया था। ठीक है, ये देखिए, व्हाट सोशल क्लासेस ओ टू ईच अदर। यहां पर उन्होंने पहला कॉन्सेप्ट क्या दिया था, ये फॉरगॉटन मैन का दिया था। उसके बाद देखिए हंगर, लव, वैनिटी एंड फियर। अब देखिए वैनिटी हो गया, मतलब हमें सजना है, ये करना है। डर, हमें नेचर से जो डर लगता है, जो प्यार हमें मिलता है फैमिली से, जो हमारे अंदर भूख है, ये सब क्या होता है, 4 प्राइमरी ड्राइविंग फोर्सेस और ह्यूमन मोटिव्स दैट राइज टू फोकस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब इंस्टीट्यूशंस कहां से आया, ये चारों पिलर की वजह से आया। ठीक है, इसे याद रखना है। तो आशा रखती हूँ कि आपको इतना समझ में आया कि विलियम ग्राहम सुमनर ने जो कहने की कोशिश की थी और जो आपको समझना है, आई होप कि आप ये समझ पाए। तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा आपके लिए, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी कि ये 15 मिनट के हर दिन एक टॉपिक लेकर आऊँ तो रिवाइज हो जाएगा। हाँ, मैंने भूला नहीं है, मुझे पता है 45 डेज का एक मैराथन
45 डेज का मैराथन मुझे कंप्लीट करना है। कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले वो मैराथन जो है कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास नहीं लेना चाहती, मैं एक्चुअली जो है ना दी कंटेंट मेकिंग कंटेंट इज टेकिंग सो मच टाइम। So yes, I hope that you loved this session and if you do please subscribe, okay? सब्सक्राइब करके जाओ। अब देखो टीचर ने आया है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा और एक कमेंट भी नीचे दे देना ताकि ऐसी वीडियो आती रहे। थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।